Good evening, sir. Evening. Good evening. कैसे हो आप सब? Fine, sir. What about you? मैं भी ठीक हूँ. Good evening, sir. Good evening. बाहेर काय आविष्कारला म्हणालेत का बघा तर. लोकेशन रेडी है सबकी? Sir, exercise 4. Exercise. ठीक है. कोई डाउट हुआ किसी को? तो No, वही sir. मेरे को वो वावल का पोजीशन में बस, और बाकी सब ठीक था. ठीक. सर वैसे कोई जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं हम्म, चैप्टर्स में, जैसे हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, तो कोई ट्रिक नहीं है हम्म. इनको लर्न करने की, या फिर मतलब ऐसे ही हमें लर्न ही करना पड़ेगा शॉर्ट अच्छे फॉर्म्स से? को हाँ जी. नहीं, शॉर्ट फॉर्म्स के लिए थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है हर एक चैप्टर में. 9 है, 6 है, एंड फिर 6 है. ओके सर. फिर ऐसे थोड़े थोड़े करके आएंगे तो याद हो जाएगा इजीली, क्योंकि यूज भी हो रहा है ना उसका. ठीक है, एक्सरसाइज 4 लिखो सर. They will come to the game today. Exercise 4, para first. They will come to the game today. Next time, they think they will be, they think they will be delayed. They think they will be delayed. Next time, show them the way सर सर to the. एड लोग डी लिख रहे हैं, ए के लिए कॉन्सोनेंट, ए का वावल लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं, ए का कॉन्सोनेंट वावल लिख रहे हैं और डी लिख रहे हैं ना, डी ई एल डी लिख रहे हैं. ओके सर. Show them the way. Next day, show them the way to the lake. Third para है, show them the way to the lake. Show them the way to the lake. Fourth है, who will come to the boat. सर नंबर 3 वाला लेक है ना, एल है, उसके बाद के है, उसके बाद उसके बीच में ए है. Hmm.
Who will come? Fourth है, who will come to the boat? Who will come to the boat? Next है, do they think? Fifth है, do they think we shall? Do they think we shall beg them to come? Do they think we shall beg them to come? Do they think we shall beg them to come? Sixth है, we may change the date. We may change the date to the 10th. We may change the date to the 10th. सर चेंज कैसे लिखा है कीजिए ना, समझ नहीं आया। हाँ, अभी बताऊंगा डिक्टेशन के बाद। ओके। We may change the date to the 10th. Seventh है, do they know the date? Do they know the date? हो गया सबका? हो गया दिनेश? यस सर। सर अभी ज्वाइन किया जस्ट। यस सर। ठीक है, तो आपने एक भी नहीं लिखा अभी? सर 5th to 7th लिख दिया, 5th to 7। ठीक है, अभी 1 2 3 4 जब कोई रीड करेगा तो ठीक है उसको सर। सुन के फिर लिख लेना आप। ठीक है सर। ठीक है, जे भी ना आप रीड करो 1 to 4। 1 to 4 ना देखते they will come to the game today. They think गेम two का they think they will be delayed. 3 का show them the way to the lake. 4 का who will come to the boat. 5 का do they think we shall beg them to come. 5 तक ना सर? हाँ ठीक है, ठीक है। एलिना आप रीड करो 5 to 7। Do they think we we sh- uh, uh, We shall we shall? सर उसके नेक्स्ट वाला वर्ड छूट गया। beg them, beg। Beg them to come. We may change the date to the 10th. Do they know the date? ठीक है, अंशु आप रीड करो। They will come to the game today. Full stop. They think they will be delayed. Full stop. Show show them the way to the lake. Full stop. Who will come to the boat? Question mark. Do they think we shall beg them to come? Question mark. We may change the date to the 10th. Full stop. Do they know the date?
question mark. ठीक है, भव्य आप रीड करो। यस सर। फर्स्ट है दे विल कम टू द गेम टुडे फुल स्टॉप। सेकंड है दे थिंक दे विल बी डिलेड फुल स्टॉप। शो देम द वे टू द लेक फुल स्टॉप। फोर्थ है हु विल कम टू द बोट क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है डू दे थिंक नहीं नहीं हाँ डू दे थिंक वी शेल बेक देम टू कम फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क। सिक्स्थ है वी मे चेंज द डेट टू द 10th फुल स्टॉप। सेवेंथ है डू दे नो द डेट फुल स्टॉप। ठीक है, मध्या आप रीड करो। They will come to the game today. They think they will be delayed. Show them the way to the lake. Fourth है who will come to the boat. Fifth है do they think we shall beg them to come. Sixth है we may change the date to the 10th. Seventh है do they know the date. ठीक है, नेहा कोमल आप रीड करो। Yes, sir. First है they will come to the game today. Second, they think they will be delayed. Third, show them the way to the lake. Fourth, who will who will come to the boat. Fifth, do they think we shall beg them to come? Sixth, we may change the date to 10th to the 10th. Seventh, do they know the date? ओके, पलक आप रीड करो। Okay, sir. They will come to the game today. Second, they think they will be delayed. Third है show them the way to the lake full stop. Fourth है who will come to the boat question mark. Fifth है do they think we shall beg them to come. Next है we may change the date to the 10th. Seventh है do they know the date question mark. ठीक है, प्रियंका आप रीड करो। Yes, sir. They will come to the game today. Second, they think they will be delayed. Full stop. Third, show them the way to the lake. Full stop. Fourth, who will come to the boat. Fifth, do they think we shall beg them to come? Sixth, we may change the date to the 10th. Seventh, do they know the date? ठीक है, संस्कृति आप रीड करो।
Okay, sir. First, they will come to the game today. Full stop. Second, they think they will be delayed. Full stop. Third, show them the way to the lake. Full stop. Fourth, who will come to the boat? Question mark. Fifth, do they think we shall beg them to come? Question mark. Sixth, we may change the date to the 10th. Full stop. Seventh, do they know the date? Question mark. ठीक है, श्रुति आप read करो. First, they will come to the game today. Second, they think they will be delayed. Third, show them the way to the lake. Fourth, who will come to the boat. Fifth, do they think we shall beg them to come? Sixth, we may change date to the 10th. 7, do they know the date? ठीक है, शलू आप read करो. So first, they will come to the game today. Second, they think they will be delayed. Third, show them the way to the lake. Fourth, who will come to the boat? Question mark. Fifth, do they think we shall uh, beg them to come? Question mark. Sixth, we may change the date to the 10th. Full stop. Seventh, do they know the date? Question mark. Okay, शीतल आप read करो. Number 1, they will come to the game today. Number 2, they think they shall be delayed. Number 4, full stop. Number 3, show them the way to the lake. Number 4, uh, who will come to the boat. नंबर 5 का मैं फर्स्ट वर्ड छूटा था सर. उसके बाद है Do. दे थिंक वी शैल बेग देम टू कम. नंबर 6 वी मे चेंज द डेट टू 10th. नंबर 7 डू दे थिंक 7 का मैं लास्ट का 2 वर्ड छूटा था मतलब लिखने में. ठीक है, do they know the date? डू दे नो द डेट. सर मेरे को ना चेंज समझ नहीं आया. हम लोग चेंज कैसे लिख रहे हैं? CH का सिंबल बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग N का सिंबल बना रहे हैं या AN का सिंबल बना रहे हैं, मतलब NG वाला Change सिंबल. मतलब no, NG का only सिंबल N बना का रहे हैं. NG का साउंड नहीं आ रहा ना उसमें. चेंज उसको ज का बनी J का साउंड आ रहा है. अच्छा उसमें यही तो है. चेंज CH हो गया, N अलग हो गया और J हो गया. क्योंकि अगर इसको हम लिखेंगे चेंज, अगर NG का सिंबल बनाते कि नॉर्मल CH और NG बनता बस, हाँ और इसमें जो साउंड आता है वो J का आता है. इंग या फिर इंग का साउंड नहीं आता ना. चेंज है तो CH N और J. चेंज सर इसमें जो क्लियर है. में एन भी आ रहा है, मतलब एन का भी सिंबल बनेगा सर? N CH हो गया सर, वो CH का सिंबल हो गया, उसके बाद में A हो गया, उसके बाद N का आ गया ना सर? हाँ हाँ, N बन गया ना इसमें. ये थोड़ा है. CH हो गया और N हो गया और J हो गया.
सर इससे रिलेट एक और हो रहा था तो वही डाउट आ रहे थे, ये सही क्वेश्चन था सर। टू डाउट हुआ। CHN और J, चेंज, ज सर का साउंड आ गया, जैसे इंग आता है ना, जैसे सर NG तो तब बनेगा ना, जैसे थिंग में क्या है, NG का साउंड है, NG से ही एंड हो रहा है ये, और NG का साउंड है भी से। सर इसमें क्या हुआ, चेंज, एन के बाद J का भी साउंड आ रहा है, तो एन के बाद अगर J का साउंड आया तो G को तो बनाएंगे नहीं, सिर्फ एन को और G को बनाएंगे, J को बनाएंगे, है ना। और किसी में? सर एक डाउट हम्म, था मुझे मे और मेक में, कि जो मे हम्म, में ए है डॉट वो लाइन पे बन रहा है और मेक में भी हम्म। ऐसा है, तो आप बताइए अब अबव बनेगा कि ये ब्लो बनेगा? नहीं, दोनों ऑन द लाइन ही बनेगा ना, मे या फिर मेक। लाइक में होता है M हो गया एंड A, एंड मेक होता है M एंड K, नहीं सर होगा। सर लास्ट सर में जो डू दे नो द डेट है, में नो द वो हम्म। कनेक्टेड रहेगा या द अलग से लिखना पड़ेगा उसमें? नहीं, नो द साथ में बनेगा, नो और द साथ में आया था, तो नो एंड द हो गया। लाइक एन बनाया हमने पहले, फिर द बनाया, फिर वॉवेल ओ बनाया, नो द। ओके सर। सर यही दिनेश क्वेश्चन आपने था, किया नो था? में हम लोग नो द बना रहे हैं, वॉवल का तो साउंड कोई है नहीं, तो फिर ओ क्यों आ रहा है? एन दोनों और ओ वॉवेल का लिख रहे साउंड हैं, है, एन और ओ एन के लिख रहे बाद हैं। ओ का साउंड आ रहा है ना इसमें, ओके। ओ का साउंड है ना इसमें, एन के बाद ओ, नहीं तो हम्म, इसको एन भी पढ़ते थे, एन के हम्म, बाद ओ का भी साउंड आ गया, एन ओ, नो। सर। वो चाहे के एन होगा या फिर डब्ल्यू होगा लास्ट में, ओ का तो साउंड आ ही रहा ना इसमें, ओ का। हम्म, एक और क्वेश्चन है सर, के को हम्म, और के को और जी को हम लोग तो ऑन द हम्म, लाइन लिखते हैं ना, हम्म, मतलब लाइन से थोड़ा ऊपर की लाइन पे एकदम लगा के लिखना है। नहीं देखो, अभी के क्या बनाएंगे हम, के हमारा जो बनता है वो लाइट बनता है, और लाइन हाँ। पे अगर इसको करोगे तो लाइट बनता है, बिल्कुल लाइन में छिप जाएगा वो। क्या करना है हमें, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर, लाइक, ठीक है। ओके। एंड जी को आप ऑन द लाइन या फिर अबव द लाइन थोड़ा सा कर सकते हैं, लाइन के सेंटर में नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ओके सर। तो फिर जो अगर के साउंड जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो वॉवल साउंड आ रहा है, वो लाइन के नीचे जाएगा। हाँ, वो लाइन के नीचे हो जाएगा ना, क्योंकि ऑन द लाइन हमको लिखना है। ओके। सर हम्म, मुझे ना जे और जी के साउंड में थोड़ा सा डाउट आ रहा है, दोनों सिमिलर से साउंड करते हैं, थोड़ा सा इशू हो रहा है मुझे लिखने में। जैसे हम लोग वेज जे और लिखेंगे, जी के। हाँ WAGE, वेज, तो हम्म, उसमें जे का भी हम्म। साउंड आ रहा है और जी का भी साउंड आ रहा है। वो जी नहीं है, वो जे का साउंड है। वे जे अगर वेज। होता है तो वे या जे, जे का जी है, जी का यस जो सर। साउंड होगा ना वो ग का साउंड करेगा, जैसे गिव, गिवन, गो, गॉट, हाँ। या फिर गॉन। ये जी का जो ग का साउंड करता है, यानी ग का, हिंदी से मार्क नहीं करना है इसको, यानी कि जी अगर आपने लिखा तो इसको हिंदी से मार्क करके नहीं लिखना कि इसका साउंड ये है। अच्छा ओके। जो जी होगा वो प्रॉपर जे का ही साउंड करेगा, वेज, जेस्ट, एज, एज, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट? जेमिना, कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है सर। दिनेश? सर अगर हम मान लो केक लिखते हैं, केक, तो एक हम्म, एक सीधी लाइन होगी, मतलब केक। तो सर हम्म,
केक हम करेंगे, क्या उसमें कहीं बीच में लाइन में कोई पार्टीशन टाइप का शो होना चाहिए, डायरेक्ट हम केक मतलब ऐसे? नहीं, शो नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि सर। शो होने का मतलब अपने पेन को होल्ड कर दिया, सर। स्टॉप कर दिया। सर। ठीक है, आपको स्टॉप नहीं करना, नॉर्मल आपका जब रनिंग हैंड हो जाएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि केक कितना बड़ा बनेगा। सर। लाइक 1 kg का होगा या हाफ के जी का होगा, वो डिपेंड सर। करता है हमारे पे। ठीक है, राइट सर। देखो नॉर्मल अगर केक होता है उसका तो जो लेंथ होता है लाइक इतना होगा। सर। केक हो गया थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब सर। बहुत डाउट होता है ना सबको कि केक में बॉबल हम बिल्कुल सेंटर में क्यों नहीं लगा रहे। राइट सर। लेकिन अगर हम केक मान लो हिंदी में भी अगर लिखते हैं तो किसके साथ हमारा इसमें जो स्वर जा रहा है वो किसके साथ है, पहले वाले के साथ। अगर पहले वाले के साथ है तो केक में भी हम पहले वाले के साथ नहीं बनाएंगे ना। सर। मैंने बताया था दोनों का हाफ कर लेना है। मान लो कि जैसे बेब होता था, बेब में क्या हो गया, दोनों का अगर हाफ करेंगे हाफ ये हो गया, पहले वाले के सेंटर में आ रहा है। एंड सॉरी, अगर पहले वाले के साथ आए तो पहले वाले के सेंटर में, और बाद में आया है तो बाद वाले के सेंटर में हो जाएगा। अगर दो सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे तो दोनों के एक पार्टीशन बनाना है, यानी कि खुद से जो आपको समझ सके, इसमें कोई लाइन को ड्रॉ नहीं करना है। वो खुद को समझने के लिए आपको बनाना है कि हाफ कहाँ पे होगा इसका, उस पे करके वहां पे बॉर्डर लगा देना है बस। क्लियर है? राइट सर। ओके, एलिना कोई डाउट? और yes sir. अंशु Yes sir. कोई डाउट है? No sir. और किसी को कोई डाउट? भव्या डाउट है कुछ? नो सर। क्वेश्चन है किसी के माइंड में? शीतल, संस्कृति, श्रुति? इतना क्लियर है सर अब तक का? Sir, all clear. सर एक तो सेकंड शुरू। क्या छूटा था, चेंज वाला मतलब वी शॉल आस्क देम टू चेंज द डेट वाला, उसके बाद क्या है, टू द के बाद क्या लिखा है? किसमें है? चेंज के बाद चेंज डे, चेंज द तो डेट टू द 10th जो लिखा है ना, वो हम लोग टी लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं और टी एच लिख रहे हैं, राइट? 10। ओके सर, हम चेंज में और इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। उसका तो सेम ही बनेगा ना। टी हाँ वो एन टी एच का साउंड है उसमें, सी एच एन और जे का साउंड है। कर्व है। डिलेड है डी एल और डी छूट जाएगा हमारा कॉन्सोनेंट। डी के बाद ई का साउंड है लाइट डॉट, एल के बाद ए का साउंड है हैवी डॉट एंड डी। यस सर, अंडरस्टूड सर। एक्सरसाइज 5 में देखो किसी वर्ड में कोई डाउट हो रहा है? में द में डाउट है सर, वी द वे लिखा है।
फर्स्ट वे में ही है वो, W का सिंबल है, उसके पहले V का सिंबल है। हैव वी, हैव हो गया ना शॉर्ट फॉर्म। हैव वी। हम्म हाँ तो फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। हैव वी पेड द डेट, वी हैव गिवन हिम द चेक टू मेल टू देम टुडे, shall we take the mail to the board, we shall aim to change the name, we know they will come today, they will take the lunch to the lake, Joe led the way to the lake, but they say it was too low to be. Was the mail delayed? It will be given to him today. सर बुक से देख के तो आपकी तरह थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन जो अपनी खुद की राइटिंग हम बनाते हैं सिंबल, उसकी बात पढ़ने में बड़ा दिक्कत है। वही तो मेन है ना, वही तो मैं क्या कहता हूँ, आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करते हो, लाइक मान लो कि हमने लिखा है हैव वी पेड द डेट, फिर नेक्स्ट है हमारा वी हैव गिवन हिम द चेक, हिम द चेक टू मेल, और क्या है टू देम टुडे, टू देम टुडे। ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ, कैसे लिखा, ये मुझे चीज पता है, क्योंकि मैंने इसकी जो प्रैक्टिस किया होगा, जो ये सेंटेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे मुझे वर्ड दिख रहा है, मैंने इसकी प्रैक्टिस लाखों बार करी होगी। ठीक है, ये मुझे पता है वे पेड द डेट दैट वी हैव गिवन हिम द चेक टू मेल टू देम टुडे। तो गिवन हिम के बाद दा के बाद में चेक है सर। हाँ, गिवन हिम द चेक टू मेल टू देम टुडे। सर ये मेरी राइटिंग, ये मेरी राइटिंग है, ये आप लोगों को चेंज, आप लोगों को बिल्कुल अलग लगेगा। पहली चीज तो मैं कीबोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैंने पेन टैब पे लिख रहा हूँ, सर इसमें चेक जो राइटिंग मेरी बन रही है, ई का वॉवेल नहीं आएगा सर। वॉवेल आएगा, बट मेरी प्रैक्टिस हो रखी है कि मैं विदाउट वॉवेल का भी वर्ड्स को रीड कर सकता हूँ विदाउट वॉवेल। तो सभी चेक तो चक पढ़ेंगे, चेक तो पढ़ेंगे नहीं सर। चेक क्या होता है दिनेश? होता तो नहीं है, बट आपके लिखने से तो नहीं तो देखो आगे पीछे का सेंटेंस पे डिसाइड कर देगा ये चेक होगा या चेक होगा, सर यू आर राइट, बट है अभी ना? हम लोग तो ये प्राइमरी। कौन सा चेक होगा, कौन सा चेक होगा, लाइक मुझे चेक करना है कुछ, या फिर बैंक वाला चेक, है ना? कैसे पता चलेगा? लाइक मुझे अगर इस सेंटेंस में कहीं बैंक मेंशन होगा, सर मेल टू चेक, सर ये चीज सेंटेंस डिसाइड करेगा कि चेक कौन सा होगा, जबकि दोनों चेक सेम ही बनेगा, यस दोनों सर। ही चेक सेम बनेगा। सर हमको कोई चेक बनाना है इसमें से, दोनों ही सेम बनेंगे, सर इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं कर सकते। सेंटेंस जो होगा ना वो डिफरेंशिएट कर देगा। सेंटेंस से पहचानना है कि मैं कौन सा चेक लेना है, बोलना है, राइट सर। हम्म हम्म आप बोलने के लिए कोई भी चेक बोलो, सर वो मैं वो उस पर नहीं होता है। अगर आप लोग खुद से चीटिंग नहीं कर रहे हो, मैंने आप लोगों से कभी नहीं बोला कि जो आपने डिक्टेशन लिखा हुआ है उसको कैसे लिखा हुआ है मुझे सेंड करो, बट आप लोग अभी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग सेंटेंस को, सॉरी, आप लोग आउटलाइन को कैसे बना रहे हो ये मुझे देखना है। ठीक है, ये चीज आप लोग अभी कर देना आज वाले में, ठीक है? बाकी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने सेंटेंस बोल दिया, डिक्टेशन हो गई, आपने लिख लिया और रीड करके मुझे सुना दिया, आपने जो रीड किया मैं उसको सच मानूंगा। हो सकता है वो आप जो रीड करते हो वो आप इस आंसर की से रीड कर सकते हो, आई डोंट नो, सर क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं रहा हूँ आपको। सर हमारा वर्ड छूटा था, जैसा वर्ड छूटा हुआ है वैसे ही भेज दे। हाँ हाँ, जो कुछ छूटा है भेज दो आप। ओके सर। वो ना कंफ्यूज हो गए थे तो छोड़ दिए थे। हम्म ओके सर। और अगर प्रैक्टिस 5 टाइम्स हो रखी है ना, तो मैं इतना फास्ट भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का कोई भी वर्ड छूटेगा। अगर प्रैक्टिस 5 टाइम्स कम हो गया है, लाइक मैंने बोल दिया ना, ये चीज मैंने लिख दिया है ना, मैंने ये लिख दिया
तो ये चीज मुझे खुद से रीड करना है, इसको ना मुझे खुद से रीड करना है, ये वर्ड मैंने लिखा क्या हुआ है। सर हम भूल गए थे। इसको रीडिंग की भी मतलब प्रैक्टिस करना है ना। हाँ, वो चेंज और टेंथ को देख कर ना, वो कर्व हम्म। में कब है, वो टीएच का आता है, वो हम भूल गए थे। हम्म। तो आधा बना के फिर हम समझ नहीं पाए, हम छोड़ दिए थे। वही पूछे भी अच्छा। आपसे कि टेंथ और चेंज वाला सर बता दीजिए। हाँ, क्या शीतल कोई डाउट है, कुछ पूछ रहे हो आप? नहीं सर, हम बता रहे हैं जो हम भूले ना, वो चेंज और टेंथ हाँ। वाला बता रहे कि हमारा पूरा हो नहीं पाया था, हम टीएच लिखना भूल गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। ओके। अभी देखो श्रुति, आपने सेंटेंस लिखा हुआ है दे विल कम टू द गेम। आपने भी गेम में बॉबल नहीं लगाया, और देखो आप ना आउटलाइन को थोड़ा छोटा बना रहे हो, लाइक थोड़ा बनाओ ऐसे कि क्लियर शो हो जाएगी। दे विल कम टू द गेम टुडे, दे थिंक, दे ठीक है, थिंक आपका गलत है, मतलब ठीक है मतलब स्टेट आउटलाइन होना चाहिए। दे थिंक दे विल बी डिलेड, शो देम द वे टू द लेक। लेक होगा लेक, एल के बाद के आएगा, आपने एफ या फिर भी बनाया हुआ है। फिर है हु विल कम टू द बोट। बोट को आपने डोट बनाया, यानी कि डी बनाना था, आपने डी बनाया है। फिर है डू दे थिंक वी शैल बेग देम टू कम, ठीक है ये। वी मे चेंज द डेट टू द 10th, डू दे नो द डेट, ये ठीक है। थोड़े से इश्यूज हैं, श्रुति थोड़ा सा फोकस करना आप। ओके सी सर। और बी। ठीक है, जेविना दे विल कम टू द गेम टुडे, दे थिंक दे विल बी डिलेड, शो देम द वे। जेविना आपने देम में बॉबल लगाया है, देम आपका शॉर्ट फॉर्म में थी, बॉबल नहीं लगेगा। देम के बाद द, देम द वे टू द लेक, वो विल कम टू द बोट, टू दे थिंक वी शैल बेग देम। फिर देम में आपने बॉबल लगाया है, टू कम, वी मे चेंज द डेट टू द 10th, नो द डेट। नो और द को आप ज्वाइन करके ले सकते हो, हालांकि ठीक है ऐसे भी, कोई इशू नहीं ओके सर। है। एंड एलिना दे विल कम टू द गेम टुडे, दे थिंक, दे में बॉबल नहीं है, दे विल बी डिलेड, to run the way to the lake, we will come to the boat। ठीक है, एलिना ठीक है आपका। ओके सर। पलक they will come to the, पलक आप कम को ना लाइन के ऊपर बनाओ, ये बिलो द लाइन। ठीक है सर। टू डे, दे विल कम टू द गेम टू डे। टू डे के लिए आपको बॉबल ओ नहीं लगाना है, इसमें टू आपका शॉर्ट फॉर्म है ना। लाइक टू डे अगर आपको लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है, टू ये होता है एंड डे ये है, टू डे। They think they will be delayed, show them the way to the lake, onto the road, we may change the route to the 10th। हाँ ठीक है। डे बोट में आपने गलती नहीं, टू डे में आपने गलती की है। No have to, they will come। स्नेहक आपने ना वी मे को थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, लाइक वी के बाद मे आप थोड़ा सा डाउन होना चाहिए था। वी में और सर। चेंज द बनाए, हाँ वी मे अच्छा। चेंज द, द को आपने टिक से बनाया हुआ है,
है ना, और हाँ वो भी वो मैं अलग से कंफ्यूज बना हो है। गई थी, मैं अलग कर दिया मैंने दो को। ठीक है, चेंज द डेट टू द 10। ठीक है। सर दो को अलग कर देंगे तो गलत नहीं है ना वैसे? द को अलग कर दो कि गलत नहीं है, बट आप द को ना डॉट से बनाना है, अगर अलग कर रहे हो आप तो। अच्छा ओके सर। ये किसका है? आ, नाम तो नहीं आ रहा इसमें। एलिना है क्या? नहीं, एलिना का तो नहीं। हाँ सर ये सुष्मिता नंबर पहले। का किसका है? है। 6235 हो गया ना ये? 6235097673 किसका नंबर है? सर मैंने अलीना सर, मैं पहले आपको भेज दिया था पर्सनली। अच्छा ठीक है, ओके। फिर है अंशु। ठीक है अंशु, बेटर है। शीतल। शीतल ठीक है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस को ना और इंक्रीज करो, ठीक है। बाकी ठीक है, प्रैक्टिस इंक्रीज करो और आउटलाइंस ना थोड़ा क्लियर करो। कर्व ऑफ सी कैसा? थिक स्ट्रोक और वो ठीक है। लाइट स्ट्रोक ठीक है। हाँ, 10th में आपने सिर्फ टी और एन बनाया है। हाँ वही हमारा लिखा भी छूट है गया, नीचे वहाँ पर। वही छूट गया था। ठीक है, चलो ठीक है आपका। दिनेश, दे विल कम टू द छूटा है आपका। Today they think they will be delayed. We will change the uh, दिनेश आपने चेंज गलत लिखा हुआ है, वी में भी क्लियर शो नहीं हो रहा है। सर टुडे नो द डे। थोड़ी सी प्रैक्टिस इंक्रीज करो दिनेश आप भी। सर सर ठीक है, मध्या आपका भी ठीक है। संस्कृति, आप लोग एम को बना तो एम को ना बहुत ही छोटा बना रहे हो। ये चीज मैंने नोटिस किया कि सब लोग एम को ना बहुत छोटा बना रहे हो। लाइक अगर आप गेम लिख रहे हो तो जी के बाद एम को आप बहुत ही छोटा, लाइक इस तरीके से लिख रहे हो। जी और एम, लाइक इतना बनना चाहिए। जी और एम, प्रैक्टिस बनाओ थोड़ी सी। ओके सर। ओके सर। हम्म फर्स्ट वाला एम ज्यादा अच्छा है। हम्म फर्स्ट वाला ज्यादा ही छोटा, ठीक है, संस्कृति बेटर है। ठीक है, एक्सरसाइज 5 की प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। सर और कोई डाउट किसी को, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? सर मेरे को यही पूछना है सर, जब ना प्रैक्टिस हम्म करते रहते हैं आराम आराम से करते हैं ना, तो लाइट स्ट्रोक और डीप स्ट्रोक में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। बट जब डिक्टेशन लिखते हैं ना, दिमाग में मेरे को पता होता है कि हम यहाँ पे लाइट लिखे हैं, हम यहाँ पे डार्क लिखे हैं, बट वो दिखने में नहीं समझ आता। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था, लाइक ये वाला जो मैंने अभी एक सेंटेंस बनाया हुआ था ना, हम्म। ये इसमें लाइट और डार्क क्लियर समझ में आ रहा है। वो फर्स्ट के 3 वर्ड्स में तो आ रहा है, बट बाकी में उतना फर्स्ट के 3 वाले में, डीप। चलो ठीक है, हैव तो हैव आपका डार्क बनता है, मतलब वी आपका डार्क बनता है। वी, हाँ लेकिन वी तो आपका लाइट बनता है ना, लेकिन मैंने क्या बनाया, हैव और वी दोनों ही डार्क बना दिया है। हाँ। पेड द, पेड द,
ठीक है, तो पेड हमने क्या किया, बिल्कुल लाइट बना दिया, पी डी द सब लाइट, डेट भी पूरा लाइट बनाया है। ठीक है, वी हैव लाइट बनाया है, गिवन हिम द चेक टू मेल टू देम टुडे। मतलब लाइट और डार्क ये प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितनी प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें सारे वर्ड आपके क्लियर होंगे। लाइट और डार्क सिर्फ अभी के लिए है। आप लाइट और डार्क करना कब छोड़ दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके बट सर। सेंटेंस आप सही रीड करोगे और सही राइट करोगे। मेरे को लगा था हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि सर आप तो चलो स्टाइलस ठीक है यूज करते अभी। हो, बट फिर भी आपका डिफरेंशिएट समझ में आता है मेरे को। जैसे सेकंड वर्ड है, हम्म, नीचे वाली वो है, वो डार्क है, ऊपर वाला लाइट शेड में है, वो आता है हम्म, समझ। बट अपने लिखने में लगता है सब एक ही लिख रहे हैं, जब ब्रश में, जब डिक्टेशन में लिखते हैं। वो प्रैक्टिस है ना, जी प्रैक्टिस सर। शेयर करो ना सब लोग अपना, इसमें तो हो जाता है। खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से फास्ट रनिंग हैंड पे लिखना स्टार्ट करो। अभी ठीक है, अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग ओनली 4 एक्सरसाइज पे हो। विद सर, हम्म, हमारे आर्मी वालों के लिए कुछ है, इसमें कुछ होप है, हो जाएंगे? क्यों नहीं होगा, बहुत बहुत स्कोप है। मतलब मान के चलो कि अभी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स में भी 3 से 4 आर्मी वाले हैं। सर एक का तो फाइनल हो गया, उनका पोस्टिंग हुआ था। मतलब उनका कोर्स फाइनल हो गया था। मतलब पूरा स्पीड लगभग 100 समथिंग हो गया था, लेकिन उनको बीच में छोड़ के जाना पड़ा सर क्योंकि उनकी पोस्टिंग कहीं और पे हो ओके गई थी। लेकिन मुझे याद नहीं कहाँ पे हुई थी, बट अब तक के मेरे सबसे बेस्ट सर। स्टूडेंट रहे हैं वो। लाइक उन्होंने ऑफलाइन में भी 3 से 3.5 महीने में, लेकिन 4 महीने में कंप्लीट कर लिया था। सर और स्पीड उनकी बहुत अच्छी थी। ओके सर। आप कौन सा जॉब करेंगे ट्राई स्टीनो करके? चलिए। सर आर्मी में जो होते हैं, वो स्टीनो सीखने के बाद हम्म, कौन सा ट्राई करते हैं? उनका होता है ना वो अपना, ये तो दिनेश बताएंगे। दिनेश बताओ आप जो डिपार्टमेंट में क्या होता है करोगे। ना, सर के बेस कैंप्स है, हम पढ़े हैं एफओ स्कूल से। तो जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका तो पहले तो एज रिलैक्सेशन होता है, प्लस यहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं। बागडोगरा में एयरफोर्स का बेस कैंप है सर। तो हम खुद एयरफोर्स स्कूल से पढ़े हैं, बट मेरे को नहीं लगा था कि स्टीनो मतलब आर्मी में भी यूज होता है इतना। मेरे को लगता था सिर्फ ये ग्रुप बी तक के लिए ही है। शीतल, आर्मी में स्टेनो यूज नहीं होता। हम सिर्फ इससे बाहर अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं सर के साथ में, बस यही है। मतलब गवर्नमेंट में ही जैसे एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें ट्राई करेंगे आप? यस, वही मैं सर से पूछ रहा था कि सर हमारे लिए तो ये चीजें हैं जो आपने पहली लाइन बोली थी, रिलैक्सेशन, तो वो हो सकता है मिल जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। नहीं, मिलेगा मिलेगा। मिलता है, वो वो प्रोविजन है। मिलेगा। यहाँ पे करते हैं लोग वो मिलेगा। तैयारी, सर मतलब एग्जाम्स वही, का। मैं डेली डेली क्लास कैसे अटेंड कर पा रहा हूँ नहीं बैकअप। जान रहा हूँ, दिक्कत हो रही है सर। हाँ चलो ओके सर। ठीक है। ओके हाँ, एक्सरसाइज 5 की प्रैक्टिस करना, मंडे को 5 की रिपीटेशन होगी। एंड कोई डाउट होगा सो कॉल और मैसेज नहीं। ओके सर। ओके। ओके ओके सर। बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। वेलकम।